अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ थ्योरी ऑफ सप्लाई। फर्स्ट वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई is that simply if we ask a producer or a seller of a commodity how much quantity of a commodity he is willing to sell, his obvious answer is going to be that the quantity or the amount of a commodity which a particular seller will be able to sell will be dependent on the price, will be dependent or will depend on the price of the commodity in the market. For example, if the price of the commodity is high, producer will be willing to sell more of the commodity, or he will be willing to offer more units of the commodity in the market, or he will be willing to sell more units of the commodity in the market at a higher price. If the price of the commodity is low, as the price of the commodity is low, the producer will be making lower level of profits or low profits. Therefore, he will be willing to sell less units of the commodity in the market, or he will be willing to offer less and less quantity of the commodity for sale. Accordingly, supply of a commodity refers to a table showing various amounts of a commodity that the producers are willing to sell at different possible prices of that commodity at a point of time. यानी अब जो सप्लाई है, ये सप्लाई शेड्यूल या सप्लाई जो हम कहते हैं, ये कमोडिटी की जो होती है, इट रेफर्स टू ए टेबल। ये एक ऐसे टेबल पे रेफर करती है जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ और डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ए कमोडिटी को डिफरेंट प्राइसेस पे किस तरह से डिफरेंट सेलर्स ऑफर करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। इसको हम कहते हैं कि ये एक सप्लाई शेड्यूल है या सप्लाई है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि लोअर प्राइसेस पे लो क्वांटिटीज़ सप्लाई होंगी मार्केट में, और अगर कमोडिटीज़ की प्राइस हाई है, एट हायर प्राइसेस मोर क्वांटिटीज़ विल बी ऑफर्ड फॉर सेल, और मोर amount of the commodity will be supplied into the market by the producers or the sellers. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है सप्लाई और प्राइस के दरमियान। इसके अगेंस्ट डिमांड जो था, लॉ ऑफ डिमांड में, वहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप थी। अगर प्राइस हाई है लेस विल बी डिमांडेड, अगर प्राइस लो है मोर विल बी डिमांडेड। मगर सप्लाई में हम देखते हैं कि अगर प्राइस हाई है तो मोर विल बी सप्लाइड इन द मार्केट, इफ प्राइस इज लो लेस विल बी सप्लाइड इन द मार्केट। सिंपली सप्लाई टेबल जो है ये दिखाता है डिफरेंट अमाउंट्स और क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी जो प्रोड्यूसर्स विलिंग होते हैं सेल करने के लिए या ऑफर करने के लिए मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Simply, supply of a commodity refers to a schedule. Supply a commodity की जो होती है, it refers to a schedule or a table showing various quantities of a commodity, जो different quantities a commodity की दिखाता है, that the producers are willing to sell, जो producers ready है बेचने के लिए मार्केट में different prices पे, उस commodity के different prices पे at a point of time, at a particular point of time. अब हम देखते हैं supply and quantity supplied. These two concepts, supply and quantity supplied, are two different concepts. There is a difference between the terms supply and quantity supplied. Quantity supplied refers to a specific quantity of a commodity that the producers are ready to sell at a specific price of the commodity. Quantity supplied जो है, it refers to a specific quantity of a commodity. एक स्पेसिफिक, एक खास क्वांटिटी ये दिखाता है जो प्रोड्यूसर्स विलिंग होते हैं सप्लाई करने के लिए एक खास प्राइस पर, यानी क्वांटिटी सप्लाइड जो है, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक खास क्वांटिटी को ये रेफर करता है जो प्रोड्यूसर्स विलिंग होते हैं एक खास प्राइस पर सेल करने के लिए। सप्लाई ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट different possible prices of the commodity. Supply जो है on the other hand refers to various quantities of the commodity, various quantities जो सप्लायर्स विलिंग होते हैं सेल करने के लिए एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। सपोज फॉर एग्जांपल क्वांटिटी सप्लाइड हम देख सकते हैं ये कि एट द प्राइस ऑफ ₹10 हाउ मेनी यूनिट्स विल बी ऑफर्ड, दैट इज 10। Suppose for example if the price of a commodity A, or the price of commodity A is ₹10 per unit. So for example at this price supplier is willing to sell, so for example 20 units of the commodity. We can say that this is quantity supplied because we are seeing a specific quantity of the commodity being supplied at a specific price. एक खास price पर, that is ₹10 पे एक खास quantity supply की जा रही है, that is 20 units.
On the other hand, supply जो है it shows different or various quantities of a commodity offered for sale at different possible prices of the commodity. For example, ₹5 पे so for example 10 units ऑफर हो रहे हैं, रुपीज़ 10 पर 20 यूनिट्स ऑफर हो रहे हैं, और इसी तरह से ₹15 पर 50 यूनिट्स ये सप्लायर्स रेडी हैं सप्लाई करने के लिए, और ₹20 पर 100 यूनिट्स है रेडी ये सप्लायर्स सप्लाई करने के लिए। तो ये हम देखते हैं कि इसको हम कहते हैं सप्लाई, क्योंकि ये दिखाता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी बीइंग सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइस डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। अब हम देखते हैं सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल जो है ये सिंपली एक टेबल होता है विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। सप्लाई शेड्यूल दिखाता है डिफरेंट क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज़ होती हैं एक कमोडिटी के, जो सप्लायर्स रेडी होते हैं सेल करने ये नहीं ऑफ़र करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, उस कमोडिटी के डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर। इसके फिर दो एस्पेक्ट्स हैं। सप्लाई शेड्यूल जो होता है ये दिखाता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी जो सप्लायर्स रेडी होते हैं सेल करने के लिए मार्केट में डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर। इसके फिर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल शोज इंडिविजुअल फर्म जो है या इंडिविजुअल एक सप्लायर जो है उसका शेड्यूल दिखाता है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। यानी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो है ये दिखाता है एक इंडिविजुअल फर्म जो है या एक खास सप्लायर जो है उसका सप्लाई शेड्यूल ये दिखाता है कि वो किस तरह से डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई करेगा मार्केट में, एक इंडिविजुअल सप्लायर। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। जैसे कि यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, सपोज फॉर एग्जांपल फर्म ए का या फर्म ए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऑफ आइसक्रीम्स, ये फर्म जो है ये आइसक्रीम्स बेच रही है एट द प्राइस ऑफ ₹5। सप्लायर विल बी एबल टू सप्लाई 0 यूनिट्स बिकॉज इट विल नॉट बी कवरिंग हिज कॉस्ट्स। तो यहाँ पर ₹5 पे ये 0 यूनिट्स ऑफर करेगा। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 5 to 10 ही विल बी एबल टू ऑफर 10 यूनिट्स। When price rises further from 10 to 15 he will be able to offer 20 units. When price rises to 20 he will be able to offer 30 units. Now you can see as the price rises quantity supplied also rises. It is clear from this table that as the price rises supply extends, supply भी क्या हो रही है extend हो रही है। At ₹5 per ice cream the firm is not willing to sell any unit. When price is ₹10 then supply is of 10 units. इसी तरह से जिस तरह से ये प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है। मार्केट फिर हम देखते हैं कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल सिंपली मीन्स द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में 10 फर्म्स हैं, उन सब 10 फर्म्स के जो शेड्यूल्स हैं कि जो सप्लाई है उसको जब हम एडअप करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइसेस तो इसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर करता है तो सप्लाई शेड्यूल जो तमाम फर्म्स के होते हैं मार्केट में, जो वो रेडी होते हैं विलिंग होते हैं सेल करने के लिए एट पर्टिकुलर प्राइसेस। सम टोटल ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री। ये जो सम टोटल ऑफ द फर्म्स, ये जो टोटल फर्म्स हैं जो ये प्रोड्यूस करती है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, इसको कहते हैं इंडस्ट्री। दस मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल। दस मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल। ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री। सप्लाई शेड्यूल ऑफ द मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है इट रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है ये पूरी इंडस्ट्री का सप्लाई शेड्यूल दिखाता है कि टोटल आउटपुट जो हो रहा है या टोटल प्रोडक्शन या टोटल सप्लाई जो हो रही है टोटल इंडस्ट्री में डिफरेंट प्राइसेस, इसको ये डिपिक्ट करती है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। Table 2 is a market supply schedule. It is based on the assumption that there are only two firms. Table 2 जो है it is based ये on the assumption that there are only two firms. We can take 2, 3 or 4 or 5 firms or unlimited number of firms or n number of firms, but the analysis will be same. It will not alter. So for example यहाँ पर आप देखिए price of ice cream is ₹5. Firm A is able to supply 0 units. Firm B will also be able to also supply 0 units, or the firm B will also be in the same situation, or he will firm B will also not will also be
also be not supplying any units of the commodity in the market because it will not be covering its costs. At, as the price rises from 5 to 10, supply of firm A increase from 0 to 10 and supply of firm B will increase from 0 to 5. Now इसी तरह से जब 15 हो रहा है तो supply of firm A is 20, supply of firm B is 10. इसी तरह से हम मार्केट सप्लाई यूनिट मार्केट सप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों फर्म्स की जो सप्लाई है इसको हम ऐड करते हैं। 10 + 5 = 15, 20 + 10 is 30, 30 + 20 = 50। तो ये हमें दिखाता है कि टोटल सप्लाई क्या हो रही है डिफरेंट प्राइसेस पे। व्हेन प्राइस इज ₹5, टोटल सप्लाई इन द मार्केट इज 0। व्हेन प्राइस इज ₹10, इंडिविजुअल सप्लाई इज 10 एंड ऑफ फर्म ए एंड इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फर्म बी इज 5, बट द टोटल सप्लाई इन द मार्केट इज 15। व्हेन द प्राइस राइजेस टू 15, टोटल सप्लाई इन द मार्केट इज 30। व्हेन प्राइस राइजेस टू 20, टोटल सप्लाई इन द मार्केट इज 50। दैट इज as the price tends to rise, supply will also rise. Individual supply schedule and market supply schedule, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सप्लाई करो। सप्लाई करो जो है, इट इज सिंपली a graphic representation of the supply schedule showing various quantities of a commodity offered for sale at different possible prices of that commodity. सप्लाई करो जो है ये सिंपली एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई शेड्यूल का। ये दिखाता है कि किस तरह से वेरियस क्वांटिटीज एक कमोडिटी की ऑफर हो रही है सेल के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, उस कमोडिटी की डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। इट शोज द, ये जो सप्लाई करो है, इट शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस पे कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। Higher quantity is offered at higher price of the commodity supply, and lower quantity will be offered at lower prices of the commodity. फिर सप्लाई करूँ जो है, इसके फिर दो एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल सप्लाई करूँ एंड मार्केट सप्लाई करूँ। इंडिविजुअल सप्लाई करूँ है जो है, इट इज़ अ सिंपली ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। ये जो इंडिविजुअल फर्म जो है होती है उसकी जो उसका जो ये जो सप्लाई शेड्यूल होता है उसकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन को कहते हैं हम सप्लाई करूँ, इंडिविजुअल सप्लाई करूँ। स्लोपिंग अपवर्ड, इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। ये जो सप्लाई करो होती है सप्लाई करो, इसका स्लोप जो होता है वो होता है पॉजिटिव। इट इंडिकेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। एज मोर इज सप्लाइड, एज प्राइस राइजेस मोर विल बी सप्लाइड, एज प्राइस डिक्लाइंस लेस विल बी सप्लाइड। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सप्लाई करो एस slopes upwards, it shows that more of a commodity is supplied at higher price. It is drawn as a straight line for the sake of simplicity. यानी at the higher price more will be supplied, at the less price less will be supplied। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। फिर है मार्केट सप्लाई करो। मार्केट सप्लाई करो इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई करो जो है ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो हम होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो हमने सभी फर्म्स का एक शेड्यूल, ये सभी फर्म्स यानी टोटल नंबर ऑफ फर्म्स जो होती है मार्केट में, उनकी इंडिविजुअल सप्लाईज को जब हम एडअप करते हैं तो हमें मिलता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो उसको जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो इसको कहते हैं हम मार्केट सप्लाई करूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ए की सप्लाई करूँ, बी फर्म बी की सप्लाई करूँ और मार्केट सप्लाई करूँ। इट इज़ द सप्लाई करूँ ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल। मार्केट सप्लाई करूँ जो है ये इंडस्ट्री की सप्लाई करूँ होती है, यानी एज अ होल ये इंडस्ट्री की सप्लाई करूँ। इट इज़ ड्राइव्ड बाय वे ऑफ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ सप्लाई करूज ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इट इज़ ड्राइव्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टली हम इन कर्व्स को इनका समेशन करते हैं। फर्म ए की सप्लाई करूँ, फर्म बी की सप्लाई करूँ, इनको जब हम हॉरिजॉन्टली इनका समेशन करेंगे तो हमें मिलेगी ये सप्लाई करूँ जो है मार्केट सप्लाई करूँ इन फिगर सी। मार्केट सप्लाई करू जो है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई करूज ऑफ द वेरियस फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। इट शोज द टोटल सप्लाई being total quantity of the commodity being supplied in the market by all the firms in the industry। ये जो टोटल नंबर ऑफ फर्म्स जो है इंडस्ट्री में, यहाँ पर हमने दो ही फर्म्स ली है, इनकी टोटल सप्लाई कितनी है मार्केट में वो हम डिपिक्ट करते हैं मार्केट सप्लाई करू से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम जो हमारा होगा अगले क्लास में, दैट इज़ सप्लाई फंक्शन।